Our next chapter is, unit is 7, and this is the part 3. Now the time of studying part 3 of unit 7, hydrodynamics. Hydrodynamics. What is the meaning of hydrodynamics? Fluids in motion. Fluids in motion. The meaning of this is fluids in motion. What is fluid? Liquid or gases? You can say fluid when some external force applied on that, not solid. Okay. In this, you have to learn firstly viscosity. Viscosity. The another name of viscosity is fluid friction. You can say this also, fluid friction. And another name is viscous drag of fluid. Viscous drag of fluid. Now, what is viscosity or fluid friction? It is the property of the liquid or fluid or gas, आप कह सकते हो, liquid or gas कह सकते हो, fluid, by virtue of which an internal friction force comes into play when the fluid is in motion. जब कोई fluid motion करता है तो एक friction उसके अंदर क्या होता है, प्ले करने लगता है, अपने आप आ जाता है, ठीक है, जो कि अपोज करता है उसके रिलेटिव मोशन को, चलने नहीं देता. शहद लाइक थिंग, शहद को देखिए, हनी को, जब आप उसको डाल देते हो तो क्या होता है, चलता तो है वो, लेकिन उसके अंदर ही एक अपोजिशन लगा रहता है जो उसको रोकता है चलने. ठीक है. इस चैप्टर में आप गाढ़े द्रव मीन्स फ्लूइड को अपने माइंड में सेटअप करके चलेंगे. पानी को नहीं, गाढ़े पानी को. कुछ उसके अंदर गम टाइप ले लीजिए, जैसे गोंद होती है ना, गम होती है, फेविकोल होता है, इस तरह की चीजें यू कैन टेक इन योर माइंड. So viscosity is the property of the fluid, or you can say liquid or gas, by virtue of which an internal frictional force comes into play when the fluid is in motion. When the fluid is in motion in the form of layers having relative motion. It opposes the relative motion. It opposes the relative motion of the different layers of fluid. To understand viscosity concept, let us take a diagram. एक डायग्राम बनाते हैं, आप इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे, एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे. करें इसको स्टार्ट. ओके. Let initially BCDE be the portion of the liquid in between two parallel glass plates. First of all, the glass plate you have to design in this manner. These are the glass plates, parallel glass plates. And now take a portion of the liquid in between them. In these glass plate, एक portion आप consider करेंगे, कौन सा? Suppose ये कर. What is the name of this portion? BCDE. This part is B, this part is C, D, and this part is E. So this is the portion which you have to pose in this. Now fill this one with liquid.
एक लिक्विड से आप इसको फिल कर दीजिए, लिक्विड फ्लूइड, ठीक है। लिक्विड भी ले सकते हो, लेकिन लिक्विड में थोड़ा सा जज करना, ऑब्जर्व करना मुश्किल हो जाता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टू टेक honey type things, gum type things, Fevicol like things like this, okay, in your mind. Now the gap between these two places for L. This one is L. Okay. Let initially BCD be the portion of the liquid in between two parallel glass plates and L be the thickness of the liquid. Let A be the area of liquid in contact with glass plate. A क्या ले लिया? एरिया। L क्या ले लिया? थिकनेस ऑफ लिक्विड। BCDE क्या ले लिया? पोर्शन बिटवीन ग्लास प्लेट। Now, let F be the tangential force applied to move the upper plate. Let F be the tangential force applied to the upper plate. Tangential force. F is tangential force is there. Tangential force क्या? बिल्कुल किनारे पर ऊपर से फॉरवर्ड डायरेक्शन, यहाँ से नहीं लगानी, बिल्कुल किनारे से सरफेस के ऊपर लगानी है, इस तरह से, जैसे किसी चीज को स्लाइड भी करते हैं आप, इस तरह से, जैसे मेज के ऊपर बुक है उसको ऐसे स्लाइड कर दिया। टेंजेंशियल फोर्स, बुक के पीछे से नहीं दम लगाना, ऊपर से लगाना। या फिर मेज के ऊपर है, मेज के ऊपर का जो सरफेस है उसके ऊपर आपने हाथ को ऐसे क्या कर रहे हो, आगे की तरफ धकेल रहे हो अपने हाथ को ऐसे, ठीक है, फिसला रहे हो, फिसलते हैं ना जैसे, लाइक, वो टेंजेंशियल फोर्स। Let F be the tangential force applied to move the upper plate with the constant velocity v. वेलोसिटी क्या होगी? आपने आप पर ये ग्लास प्लेट को ऐसे कर दिया, ये चिपका हुआ है लिक्विड इसके साथ, आपको पता है ये, ठीक है, हनी लाइक। आफ्टर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी टाइम के बाद अगर आप ऐसी फोर्स लगाओगे, v वेलोसिटी से मूव करेगा, डेल्टा टी टाइम के बाद क्या सीन होगा, क्या कंडीशन दिखाई देगी आपको? After a short interval of time delta t, the liquid take the shape like, कैसी शेप ले लेगा वो? अभी दिखा। लिक्विड इस तरह की शेप ले लेगा आपकी, जो ग्लास प्लेट, फॉर दिस ग्लास प्लेट इज एक्स, दिस इज वाई, एक्स के साथ जो होगा वो लिक्विड उसके साथ इस तरह से जाएगा, और यहाँ पे सबसे ज्यादा फोर्स लगेगी, उसके बाद सेकंड लेयर पे, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, कम होती चली जाएगी, और लास्ट में नेग्लिजिबल फोर्स हो जाएगी, जीरो फोर्स, और यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स होगी। यही विस्कोसिटी का मतलब है। और लेयर बाय लेयर उसके जो बीच में इंटरमोलिक्यूलर फ्रिक्शन चल रहा है, लेयर का फ्रिक्शन चल रहा है, वो दूर दूर जाते जाते क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है, ये सरफेस के ऊपर की बात हो रही है, लिक्विड का जो सरफेस। आया समझ में? उसके बाद दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड डेल्टा एक्स एंड कैन बी कैलकुलेटेड बाय v इंटू डेल्टा टी, वेलोसिटी इंटू टाइम करके आप इसको निकाल सकते हो। किसको? डेल्टा एक्स को। कितना बात उसने कवर करा। During this interval of time delta t, the liquid has undergoes a shearing strain. शेयरिंग स्ट्रेन आ चुका है यहाँ पर, शेयरिंग स्ट्रेन में पढ़ा था आपने,
What is shearing strain here? Delta x upon L. Delta x upon L. ये होगा shearing strain. As the time passes, the shearing strain in the following liquid increases continuously with time. अगर आपने ऐसी फोर्स लगाते गए, डेल्टा टाइम टी बढ़ाते गए, तो ये इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा. ठीक है. Experimentally, it is found that in a flowing liquid, the stress is proportional to the rate of change of strain. Experimentally क्या देखा गया? जो स्ट्रेस और स्ट्रेन होते हैं वो क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो फॉर द फ्लोइंग लिक्विड, बहते हुए लिक्विड के लिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन क्या होगा? शेयरिंग स्ट्रेन अपॉन टाइम. ये स्ट्रेन हो गया आपके पास, अपॉन में टाइम. रेट ले लिया. क्या ले लिया? डेल्टा एक्सएल अपॉन डेल्टा टी. क्या होगा ये? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इंटू 1 अपॉन एल. डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या होगा? वेलोसिटी. तो v बाय एल. नोट करिए, v बाय एल. आफ्टर दिस, व्हाट इज शेयरिंग स्ट्रेन? स्ट्रेस. व्हाट इज शेयरिंग स्ट्रेस? शेयरिंग स्ट्रेस क्या होगा? What is sharing stress? अब स्ट्रेस की बात हो रही है. You know the formula for calculating sharing stress is force upon area. एक थीटा ही होता है एंगल वाइज लेते हो जिसको आप, force upon area. Now the next term is coefficient of viscosity, जिसके बारे में आपको पढ़ना है. Coefficient of viscosity, जिसको ईटा से डिनोट करते हैं, और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो देखिए. Coefficient of viscosity is the ratio of shearing stress to the shearing strain. Shearing stress to the shearing strain. Coefficient of viscosity का फॉर्मूला. यही वो विस्कस ड्रैग है जिससे का पता लगता है कि किसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, कौन सा फ्लूइड ज्यादा रेट से बहेगा, कौन सा कम रेट से बहेगा, कौन सा ज्यादा गाढ़ा है, कौन सा कम गाढ़ा है, वो ये बताएगा. What is shearing stress? Force upon area. What is shearing strain? Delta x upon delta x. सोल्व करिए. f के साथ l आ जाएगा और डेल्टा x के साथ a. ठीक है. शेयरिंग स्ट्रेन रेट, रेट बताइए, अपॉन टीवी है यहाँ, डेल्टा टीवी. यू नो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या होता है? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या होता है? वी. तो यही एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा एफ एल वेलोसिटी इंटू एरिया. वेलोसिटी इंटू एरिया. इसके बाद डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी. डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करोगे, इसकी एक्सप्रेस करोगे. डायमेंशन, यू नो विस्कोसिटी क्या आ गया? एफ एल अपॉन वी ए. एफ की डायमेंशन क्या होती है? एम एल टी माइनस 2. लेंथ की एल, velocity lt minus 1 and area has dimension L2. Solve it.
डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी कैलकुलेट करिए, यहाँ से डिटरमाइन करिए, कैसे करेंगे। एल से एल कैंसल, 1L से 1L, T-1 से T-1 कैंसल, दिस L गोज टू द न्यूमिरेटर, M पहले से है वहां पर, L-1 और ऊपर क्या बचा हुआ है, T-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी। यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यूनिट क्या होंगे? यूनिट इससे होते हैं पॉजिटिवली, पॉज में भी लिखते हैं, अभी बताते हैं इसके बारे में। ईटा के यूनिट चाहिए, क्या होगा फार्मूला, फोर्स अपॉन एरिया, V बाई एल है, V बाई एल इस तरह से लिख सकते हैं। V बाई एल को आप इस तरह से भी लिख सकते हो बेटा, डेल्टा V अपॉन डेल्टा एल, शॉर्ट में ईटा की वैल्यू, और F A dV बाई dx ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कोई चेंज नहीं है इसमें, कोई मतलब दिक्कत नहीं है, कोई भी फार्मूला यू हैव टू अप्लाई while solving the numerical or question or reading the book or any reference book. You can use all these terms. Now eta is the unit of eta is, क्या यूनिट होंगे? फोर्स के यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर, डीवी अपॉन डी एक्स, वेलोसिटी के मीटर पर सेकंड अपॉन मीटर, मीटर से मीटर कैंसल, क्या आ जाएगा? यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये सेकंड ऊपर जाकर प्लस, दिस इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। और इसको क्या बोलते हैं? पास्कल सेकंड भी बोलते हैं, यू कैन से पास्कल सेकंड, पास्कल इनटू सेकंड, और पॉजली पीएल भी बोल सकते हो, पॉजली पीएल, स्पेलिंग लिख दे, पॉजली POISEU POISEUI बट वन मोर थिंग इज इम्पोर्टेंट हेयर, जो आपको ध्यान रखना है वो है 1 डेकापोल इज इक्वल टू 10 पोल और इज इक्वल टू 1 पोल। नोट डाउन this thing, 1 decapoise is equal to 10 poise is equal to 1 poise, काफी important चीज है, because in numerical the value of viscosity given in poise, so you have to convert this poise in Poiseuille by dividing it with the 10, 10 से डिवाइड करके आपको उसको Poiseuille बनाना होगा, बिकॉज Poiseuille जो है वो M के सिस्टम, ठीक है, M के सिस्टम में है, पोइज में से Poiseuille लेने के लिए आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, ध्यान। नेक्स्ट Poiseuille फॉर्मूला,
ये फार्मूला नोट कर लिया? Now the next article is Poiseuille's formula. What is this? क्या कहना चाहता है? When a liquid flows through a horizontal tube with a steady flow under some external pressure. जब कोई लिक्विड किसी हॉरिजॉन्टल ट्यूब में से चलता है, let us take horizontal tube. Okay. This is the liquid flow from X to Y. Okay. Liquid flowing. Liquid flowing. When a liquid flows through a horizontal tube with a steady flow under some external pressure, the liquid moves in cylindrical layer coaxially with the axis of the tube. The velocity of cylindrical layer is maximum along the axis of tube. जब ये लेयर चलेंगी, ये सिलेंडर के शेप लेकर ही चलेंगी सभी लेयर, बट जो सेंटर वन होगी लेयर, सेंटर में जो लेयर होगी उसकी स्पीड सबसे ज्यादा, द स्पीड ऑफ सेंटर लेयर जो एक्सियल पर होगी, एक्सियल लेयर होगी, सभी लेयर चलेंगी लेकिन सबसे ज्यादा स्पीड इसकी होगी. The velocity of the cylindrical layer is maximum along the axis of the tube and it goes on decreasing towards the wall. और जैसे जैसे ये वॉल की तरफ चलती जाएगी, वेलोसिटी कम होती जाएगी. तो बिल्कुल जो यहाँ पर होगी उसकी वेलोसिटी नेग्लिजिबल, जो यहाँ पर होगी उसकी वेलोसिटी 0 के करीब हो जाएगी. ठीक है. The velocity is minimum for the layer in contact with the wall of the tube. ट्यूब के साथ वाली लेयर्स की जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी. The velocity of different layers is shown by arrow line. चलो, अब इसका सबसे ज्यादा वेलोसिटी इसकी होगी, यहाँ पर एरो, उससे कम इसकी होगी, उससे कम इसकी होगी, ऐसे ही उससे कम यहाँ पर, उससे कम यहाँ. ठीक है. तो ये एक शेप आ जाएगी यहाँ, दिख रही है. इस हिसाब से आपका क्या चलेगा, लिक्विड फ्लो करेगा. बीच वाली लेयर सबसे ज्यादा वेलोसिटी, साइड वाली कम होती चली जाएंगी एंड एट द नियर ऑफ द वॉल वेलोसिटी इज मिनिमम. Poiseuille studies the rate of flow of liquid. Poiseuille ने रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड पढ़ा. रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का मतलब क्या है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, लिक्विड फ्लो पर यूनिट टाइम, P/T. Through a capillary tube varies first directly proportional to the pressure difference across the two ends of the tube. उसने पता करा कि जो ये फ्लो हो रहा है ये इन दोनों के प्रेशर डिफरेंस पर डिपेंड करता है. मतलब कौन सा कम कौन सा. ये लिक्विड X to Y क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कम है, यहाँ पर ज्यादा है.
तो ये प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, दिस रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ रेडियस ऑफ द ट्यूब। इस ट्यूब का रेडियस कितना है होगा, तो वो कह रहा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द रेडियस, फोर्थ पावर ऑफ द रेडियस ऑफ ट्यूब। इस ट्यूब की रेडियस की पावर 4 इनवर्सली प्रोपोर्शनल एज द लेंथ ऑफ द ट्यूब। लेंथ कितनी है, 4L, तो दिस वॉल्यूम पर यूनिट टाइम पर सेकंड is inversely proportional to that. By combining these three, one thing more, liquid की विस्कोसिटी कितनी है, थीटा, ये भी इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर ये ज्यादा गाढ़ा है तो इसका फ्लो कम होगा, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इन चार चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। बाय दिस वी कैन राइट दिस इक्वेशंस है V upon T proportional to PR4 upon theta L. Proportion sign can be converted into equal by multiplying any constant, and here the constant is pi by 8. And now the formula is volume per unit time is equal to pi PR raised to the power 4 8 theta L. Pi by 8 is proportionality constant, and this equation is Poiseuille equation. Poiseuille इक्वेशन। एक ट्यूब में से, एक पाइप में से कितना पानी बहेगा, कितना पानी बाहर निकलेगा उसके हर सेकंड, वो डिपेंड करता है प्रेशर पर, रेडियस ऑफ ट्यूब पर, उसकी लेंथ पर, ट्यूब कितनी लंबी है, और जो लिक्विड उसके अंदर से फ्लो कर रहा है उसकी विस्कोसिटी पर, उसकी विस्कोसिटी। ठीक है, ओके। विस्कोसिटी के लिए आपने फार्मूला करा था अभी पहले ड्राइव, क्या था वो, नोट कर लीजिए एक बार, F अपॉन A dV अपॉन T। ठीक है, तो ये विस्कोसिटी आप ऐसे निकाल सकते हो। यूनिट भी पता है, न्यूटन मीटर माइनस 2 सेकेंड, पास्कल सेकेंड भी बोलते हैं, और पोइजली इसका पोइजोन नहीं पता है। ठीक है, इस फार्मूले को ड्राइव कर सकते हो आप डायमेंशनली, फर्स्ट यूनिट में भी आया था ये। चलो फार्मूला ड्राइव करते हैं, कैसे, a liquid of viscosity theta, और कैसे लिख सकते हैं डेरिवेशन फार्मूले का, यूजिंग डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल एनालिसिस, यू कैन ड्राइव दिस फार्मूला। स्टेटमेंट बना सकते हो आप, कैसे बनेगी स्टेटमेंट, a flow of liquid, rate of flow of liquid depends on pressure difference of two ends of the tube, C, radius of the tube, R, length of the tube, L, and viscosity, coefficient of viscosity of the liquid, eta.
इस तरह से, ठीक है। चार चार चीजें ABCD लेना पड़ेगा। तो अगर टाइम और लेंथ अगर होते हैं तो ध्यान रखना है इसमें। देखो ये दो लेंथ हुई पड़ी है, R भी लेंथ है, L भी लेंथ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक चेंज करेंगे आप, प्रेशर को प्रेशर ना लेकर प्रेशर पर यूनिट लेंथ ले लें। अब ये माइनस में आए, प्लस में आए, ऊपर आए, नीचे आए हो तो इसकी पावर अपने आप ले आएगी। थोड़ा सा ये खेलना पड़ेगा। जैसे टाइम था, वॉल्यूम को यहाँ पर वैसे बुक्स में भी लिख रखा है, लेकिन इसको रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड बोला गया है। वॉल्यूम पर यूनिट टाइम की तरह से आप इसको ट्रीट करेंगे। नाउ इन सिंपल मैनर इन बुक्स you have to, in books or in notebooks you can see this thing as, आप इस चीज को ऐसे देखें। लेकिन यहाँ पर V क्या होगा, V अपॉन T। P क्या होगा, P अपॉन L। इस तरह से ट्रीट कर, कैसे करते थे, पावर कंसीडर कर दिया ABC, क्या कंसीडर कर दिया ABC। V को क्या लिखेंगे आप, K P R ईटा ABC, इसी तरह से, ठीक है। सबकी डायमेंशंस अप्लाई कर दीजिए। वॉल्यूम की क्या होगी L3, बट डोंट फॉरगेट दिस इज नॉट V, दिस इज V अपॉन T। टाइम भी नीचे था तो T ऊपर आकर L3 T minus 1 is the dimension of rate of flow. K, what is the pressure dimension? What is the dimension of pressure? ml minus 1 T minus 2. But this is not only pressure, this is pressure per unit length or gradient of pressure, you can say ml minus 2 T minus ml minus 2 T minus 2. Put here ml minus 2 T minus 2. Pressure per unit length. Radius L power B and eta. What is the dimension of eta? ml minus 1 T minus, and the whole power is 3. Now solve it. You can write this m0L3 T minus 1. This is A. M raised to the power A, L raised to the power minus 2A, T raised to the power minus 2A. M0 L3 T minus 1 is A. M power को इकट्ठा कर लीजिए, A plus C, L minus 2A plus B minus C, and this is T, T raised to the power minus 2A, and here T raised to the power minus. Now principle of homogeneity you have to apply here. A plus C is equal to 0, minus 2A plus B minus C is equal to 3, minus 2A minus C is equal to minus. From there you can get the value of ABC. अपने आप करना इसको, ठीक है। और वैल्यू पुट करके आपने वैल्यू निकाल कर आपने क्या करना है, यू हैव टू पुट इन दिस इक्वेशन एंड यू विल गेट द फार्मूला V is equal to K PR for theta. इस तरह से आप फार्मूले को निकाल सकते हो। बस, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।